Assalamualaikum dear students, I hope you are doing well. हम लोगों ने लास्ट टाइम जो अपनी डिस्कशन स्टॉप की थी, वी वर डिस्कसिंग पाइपलाइनिंग ऑफ डिजिटल सिस्टम. So before starting our new topic, I would like to give a quick recap. Okay, so basic idea of pipelining is to reduce the critical path. किसी भी डिजिटल सर्किट में जो क्रिटिकल पाथ होता है, द होल फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिटल सर्किट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ कंप्यूटेशन टाइम ऑफ द क्रिटिकल पाथ. तो क्रिटिकल पाथ को अगर किसी तरह से रिड्यूस कर लिया जाए तो सिस्टम की क्लॉक स्पीड जो है वो उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज की जा सकती है. नंबर 1. नंबर 2, अगर उस सिस्टम को पाइपलाइन कर दिया जाए और उसके बाद उसको उसी स्पीड के ऊपर चलाया जाए, then we can achieve the reduction in power consumption of a digital system. So there are two kind of applications of pipelining. One is either it helps to reduce the critical path and then by increasing the clock frequency, or it can achieve reduction in power consumption if the pipeline system is run at the same speed as it was running before pipelining. Parallel processing is another technique. इसमें क्या होता है कि there are multiple outputs that are computed in parallel in one clock period. A fully pipelined system जो है वो it is able to receive one input sample per clock cycle and it produces one output sample per clock cycle, whereas a parallel system is able to receive and compute multiple input and output sample per clock cycle. So multiple outputs जब compute होती हैं एक clock cycle में, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि sample rate उस सिस्टम का increase हो जाता है and it increases proportional to the level of parallelism. जितना हम उस सिस्टम को पैरेललाइज करते हैं उतना ही sample rate increase हो जाता है. सैंपल रेट जब इंक्रीज होता है तो उसका रिजल्ट जो है वो सिस्टम की ओवरऑल जो थ्रूपुट है उसमें डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है, बिकॉज द थ्रूपुट विच इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सैंपल रेट ऑफ द सिस्टम. नंबर ऑफ सैंपल्स प्रोसेस्ड पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल. सो पाइपलाइनिंग सैंपल रेट को कैसे इंक्रीज करती है? It increases the sample rate by increasing the clock frequency of the system. Parallel processing increases the sample rate of a system by processing multiple samples at the same time per clock cycle. Cycle clock period जो है parallel processing में same रहता है, मगर क्योंकि हम हार्डवेयर को डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कर रहे होते हैं, उसके नतीजे में मल्टीपल सैंपल्स उसी क्लॉक पीरियड में प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से सैंपल रेट इंक्रीज होता है. पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि वन सैंपल पर साइकिल आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि हम क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्लॉक पीरियड है वो कम हो जाता है. तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि पाइपलाइनिंग इंक्रीजेज द सैंपल रेट बाय रिड्यूसिंग द क्लॉक पीरियड. Parallel processing increases the sample rate by increasing the number of samples processed per clock period. उसके बाद हमने एग्जांपल देखी 3 टैप FIR फिल्टर की. y of n is equal to a x of n plus b x of n minus 1 plus c x of n minus 2. और इसका ये डाटा फ्लो ग्राफ आपके सामने है. इसमें हमारे पास इसका अब क्रिटिकल पाथ क्या है? क्रिटिकल पाथ इज द पाथ विद मैक्सिमम कॉम्बिनेटोरियल डिले विच डज नॉट कंटेन एनी डिले एलिमेंट.
और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज बिटवीन इनपुट रजिस्टर टू आउटपुट रजिस्टर और between two intermediate register or between input to intermediate register or between intermediate register to the output. ये चार possibilities हो सकते हैं critical path के occur होने की. So if we look at this data flow graph, we obtained a critical path which is this one, starting from xn passing to this multiplier and these two adders. So the total critical path is equal to Tm plus 2Ta, and the frequency of system is limited by the critical path. So the frequency is always upper bound by the critical path. The sample time is equal to Tm plus 2Ta. So this time must be greater than or equal to the critical path. We cannot obtain a sample time less than the critical path. अगर हम critical path delay से पहले हम samples को apply करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो प्रॉपरली कंप्यूट नहीं होगी. सैंपल्स जो है वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे जिसकी वजह से रिजल्ट हमारे पास ठीक नहीं आएगा. सो सैंपल टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द क्रिटिकल पाथ डिले. And frequency is 1 by sample time, so we can have sampling frequency is less than or equal to 1 by Tm plus 2Ta, where Tm is the propagation delay of multiplier and Ta is the propagation delay of adder. So pipelining reduces the effective critical path by introducing pipelining latches along the critical path. And parallel processing, it increases the sampling rate by replicating hardware so that several inputs can be processed in parallel and several outputs can be produced at the same time. तो ये एक सिंपल सिस्टम है जो कि सिंपल डाटा पाथ है विदाउट एनी पाइपलाइनिंग. सो इफ वी अप्लाई अ पाइपलाइनिंग से हम करते क्या है, वी इंसर्ट डिले एलिमेंट, डिले लैचेस अलोंग द पाथ वेयर वी वांट टू पाइपलाइन, और उसके नतीजे में उसका जो क्रिटिकल पाथ है वो रिड्यूस हो जाता है. पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि वो सारे का सारा जो डाटा पाथ होता है उसको रेप्लिकेट किया जाता है. रेप्लिकेशन बाय 2 बाय 3 बाय 5 बाय 4, मतलब जितने सैंपल्स पर साइकिल हमने प्रोसेस करने हो उसी हिसाब से उसको हम रेप्लिकेट करते हैं. तो ये हमने सारा उसका डाटा फ्लो लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था. अगर आपके पास इस तरह का सिस्टम है तो पाइपलाइनिंग के नतीजे में आपके पास क्या होता है कि हर क्लॉक साइकिल में एक इनपुट सैंपल जो है, सिस्टम इज एबल टू एक्सेप्ट वन इनपुट सैंपल एवरी क्लॉक साइकिल, राइट. और उसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स द सिस्टम इज एबल टू जनरेट वन आउटपुट सैंपल every clock cycle. So those number of clock cycles is called as latency of the system. Latency is what? Latency is defined as the number of clock cycles between the first valid input and first valid output. तो अब इसमें ये देखें कि आपके पास जो पहली वैलिड इनपुट अप्लाई की जा रही है इस सिस्टम में, दैट इज x0, which is being applied on clock cycle number 0, and we are getting first valid output y0 on clock cycle number 1. So this system has got a latency of 1, right. उस latency के बाद we are having one output sample every clock cycle. तो लास्ट टाइम हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी कि इफ
m is the level of pipelining, जिसको आप पाइपलाइनिंग डेप्थ भी कहते हैं। अगर पाइपलाइनिंग डेप्थ m है तो इसका मतलब है कि we have inserted m-1 delays in the critical path, right? If the pipelining depth is m, it means we have inserted m-1 additional delays in the critical path. उस क्रिटिकल पाथ को ब्रेक करने के लिए हमने m-1 एडिशनल डिलेज इंसर्ट किए हैं। और लेटेंसी कितनी होती है? जितनी उस सिस्टम की पाइपलाइनिंग डेप्थ होती है, इफ m is the pipelining depth of a system, then m-1 would be the latency of the system. और उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट चीज देखी थी वो ये थी कि इन एन m लेवल पाइपलाइन सिस्टम द नंबर ऑफ डिलेज एलिमेंट इन एनी पाथ फ्रॉम इनपुट to output is m-1 greater than that in the same path in the original sequential circuit. ये हमने डिस्कस कर लिया कि एक अनपाइपलाइन सिस्टम को जब पाइपलाइनिंग करते हैं और हमारे पास पाइपलाइनिंग डेप्थ m होती है, m लेवल पाइपलाइनिंग होती है, इट मींस we are inserting m-1 registers more than those registers that are present in the unpipelined system. अब इसका एक काइंड ऑफ कॉस्ट क्या होती है कि it although it reduces the critical path but it leads to a penalty in terms of increased latency. कि यहाँ पे अगर हमने ये चीज पाइपलाइनिंग रजिस्टर ना डाले होते तो we would be getting one output sample every clock cycle after one clock cycle, but by inserting additional latches हमारे पास कुछ क्लॉक साइकिल्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू दिस पाइपलाइनिंग, और दो साइकिल्स आर नोन एज द लेटेंसी ऑफ द सिस्टम. Latency is the difference in the availability of first output data in the pipeline system. लेकिन after a certain latency, the system is able to produce one output sample every clock cycle. Second, इसका जो drawback है वो ये है कि because we are inserting additional latches in the system, it means the system complexity would increase due to increase number of latches. उसमें ज़्यादा latches जो है वो ट्रांजिस्टर से मिलके डिज़ाइन किए जाएंगे, तो we would be having more number of transistor on the silicon, which will increase the complexity of the system. Then we discuss कि अगर आपके पास एक FIR सिस्टम है, एक डिजिटल FIR फिल्टर है, तो उसको हमने पाइपलाइन किस तरह से करना है कि उसकी जो कंप्यूटेशन है वो हमारे पास इफेक्ट ना हो. बिकॉज अगर वो अनपाइपलाइन स्टेज में भी है तो देन स्टिल इट विल कंटेन सम डिले एलिमेंट, और वो जो डिले एलिमेंट्स होंगे वो उस सिस्टम की इक्वेशन पे डिपेंड कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव ax of n प्लस बी एक्स ऑफ एन माइनस वन प्लस सी एक्स ऑफ एन माइनस टू. अब ये जो डिले है ये दोनों दीज आर नॉट यूज टू पाइपलाइन द सिस्टम, बट दीज आर एक्चुअली यूज टू प्रोड्यूस अ डिले ऑफ वन क्लॉक साइकिल इन द इनपुट सैंपल. नाउ दिस डिले इज बिकॉज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द FIR filter. This delay is not to pipeline the system. So it means कि हम लोग arbitrarily delays नहीं प्लेस कर सकते, हमें एक सर्टन क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा ताकि सिस्टम की जो एक्सप्रेशन है, जो कंप्यूटेशन है, उसका जो है वो उस पर इफेक्ट ना हो. तो उसके लिए फिर हमारे पास तरीकाकार ये है कि we would be placing latches only across any feed forward cut set in the graph. Cut set क्या है? Cut set is a set of edges of a graph such that if those edges are removed from the graph becomes disjoint.
अगर आपके पास एक डाटा फ्लो ग्राफ है तो उसमें वो तमाम एजेस का सेट कि अगर उन एजेस को रिमूव कर दिया जाए तो द ग्राफ बिकम्स डिसजॉइंट, मींस देयर इज नो पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्प्लिट अप हो जाता है, आउटपुट तक जाने के लिए कोई पाथ, वैलिड पाथ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। So set of all edges which makes the graph disjoint is known as a cut set. And what is a feed forward cut set? Feed forward cut set is a cut set such that the data only moves in the forward direction. ठीक है, वो तमाम जो edges हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो इनपुट से आउटपुट की तरफ होनी चाहिए। तो अगर तो फीड फॉरवर्ड कट सेट है उसमें हम पाइपलाइनिंग लैचेस प्लेस कर सकते हैं। अब रूल ये है कि जो भी आप कट सेट लगाएंगे वो कट सेट जितने एजेस के साथ इंटरसेक्ट करेगा वहां पे लैच प्लेस होगा। कितने लैचेस प्लेस होंगे? m-1 लैचेस प्लेस होंगे। तो ये आपके सामने सिग्नल फ्लो ग्राफ था, ये अनपाइपलाइन सिस्टम था। इसका अगर आप क्रिटिकल पाथ निकालें तो यहाँ से लॉन्गेस्ट पाथ क्या बनता है? ये बनता है A1 to A3, then we have A5, A4 and A6. Now if we want to pipeline this system तो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस कौन कौन सी है? एक कट सेट ये वाला है, उसके बाद एक कट सेट ये है, एक कट सेट ये है, एक कट सेट ये डॉटेड एरो आपके सामने शो कर रहा है। सो दिस इज आल्सो अ कट सेट। कैसे कि अगर इस एज को, इसको और इन दोनों को रिमूव कर दिया जाए तो देयर डज नॉट रिमेन एनी पाथ दैट गोज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। सो दीज एजेस मेक अ कट सेट। और फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को आप एनालाइज करें तो देखें कि यहाँ पे सारे एजेस जो है वो इनपुट से आउटपुट की तरफ डायरेक्टेड है। सो दिस इज अ वैलिड फीड फॉरवर्ड कट सेट। तो अब अगर हमारे पास पाइपलाइनिंग लेवल है 2, इट मींस m is equal to 2, so it means we would be placing m-1 which is equal to 1. We would be placing one extra delay element along all the edges that are present on this cut set. तो यहाँ पे ये सब पे एक एक डिले एलिमेंट हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर एक और चीज जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं की थी, उसमें एक टेक्निक और भी ये है कि अगर हम सिस्टम को पाइपलाइन नहीं करना चाहते, अगर हम सिस्टम को बगैर पाइपलाइन किए उसका क्रिटिकल पाथ डिक्रीज करना चाहें तो हमारे पास एक अप्रोच और भी है जिसको आप डाटा ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो भी सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है FIR फिल्टर का, हम अगर उसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दें, ट्रांसपोज स्ट्रक्चर में, तो वो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगी चीज, जो रिजल्टेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ आएगा, that will have a smaller critical path as compared to the original one. अब ट्रांसपोजिशन किस तरह से होगी? ट्रांसपोज थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन हो तो उसकी इनपुट को हम आउटपुट से रिप्लेस कर दें और तमाम एरोस की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ होगा वो ओरिजिनल का ट्रांसपोज होगा। अब इसको अगर देखें, हमारे पास यहाँ पे xn की जगह हमने yn प्लेस कर दिया, yn की जगह xn प्लेस कर दिया और तमाम एरोस की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास डाटा ब्रॉडकास्ट स्ट्रक्चर होगा और उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो डाटा है तमाम मल्टीप्लायर्स को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इनपुट सैंपल जो है वो तमाम मल्टीप्लायर्स को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है हमारे पास। तो हम इसको मजीद डिटेल में नहीं देखते बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन पाइपलाइनिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। उसके बाद हमने पाइपलाइनिंग की डिफरेंट एग्जांपल्स
देखी थी। और नेक्स्ट जो चीज़ थी हमारे पास फाइन ग्रेन्ड पाइपलाइनिंग। फाइन ग्रेन्ड पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको इंटर कंपोनेंट लेवल पे कट सेट प्लेस करने के बावजूद आपका क्रिटिकल पाथ इतना रिड्यूस नहीं हो रहा कि आपकी जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको अचीव कर ले, तो फिर आपके पास अगली जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जो कंपोनेंट्स हैं ओरिजिनल जो आपने मल्टीप्लायर्स या एडर्स लगाए हैं उनको भी पाइपलाइन करें, यानी उनके अंदर जाके, उनके आर्किटेक्चर के अंदर जाके आप पाइपलाइन लैचेस प्लेस करें। लेकिन उसमें अब कंडीशन ये है कि अगेन आपने वो तमाम कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि कट सेट के ऊपर मौजूद हो। तो अगर आपके सामने ये FIR फिल्टर बना हुआ है, इसमें नॉन पाइपलाइन फॉर्म में हमारे पास एक ही मल्टीप्लायर था हर एज के ऊपर। तो अब अगर हम वो तमाम मल्टीप्लायर्स को आइडेंटिफाई करें जो कि कट सेट के ऊपर आते हैं, फीड फॉरवर्ड कट सेट के ऊपर, तो हम उन तमाम मल्टीप्लायर्स को हमें एट अ टाइम जो है वो स्प्लिट अप करना होगा, उनके अंदर पाइपलाइनिंग लैचेस एट अ टाइम हमने इंसर्ट करने होंगे। तो अगर आपके पास मल्टीप्लायर TM मल्टीप्लिकेशन टाइम 10 यूनिट है, तो अगर मल्टीप्लायर जो है it is broken down into two smaller units with processing times of 6 units and 4 units respectively by placing the latches on the horizontal cut set across the multiplier। ठीक है, तमाम मल्टीप्लायर्स को अगर हम दो सब यूनिट्स में डिवाइड कर दें M1 और M2, और उन M1 और M2 के दरमियान में पाइपलाइनिंग लैचेस प्लेस कर दें, नाउ द डिजायर्ड क्लॉक पीरियड कैन बी फर्दर रिड्यूस टू TM प्लस TA बाई 2। अनपाइपलाइन स्टेज में इसका क्लॉक पीरियड कितना था? TM प्लस 2TA। और हमने अगर सिंपल पाइपलाइनिंग की तो फिर क्लॉक पीरियड कितना हो गया रिड्यूस होके? TM प्लस TA। और अगर हमने फाइन ग्रेन पाइपलाइनिंग की तो उसके बाद हमारे पास फर्दर रिडक्शन आ गई क्लॉक पीरियड में, और वो रिड्यूस होके TM प्लस TA बाय 2 हो गया हमारे पास। तो ये तो सारा था हमारे पास पाइपलाइनिंग में। इसका सारा क्रक्स ये है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पाइपलाइनिंग इज टू इंक्रीज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी बाय रिड्यूसिंग द क्रिटिकल पाथ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। और पैरेलल प्रोसेसिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है, इट इंक्रीजेस द सैंपल रेट बाय प्रोसेसिंग मोर सैंपल्स पर क्लॉक पीरियड। एंड पैरेलल प्रोसेसिंग एंड पाइपलाइनिंग टेक्निक्स आर डुअल्स ऑफ ईच अदर। डुअल्स ऑफ ईच अदर का क्या मतलब है कि अगर कोई एक DSP सिस्टम पाइपलाइंड किया जा सकता है, इट मींस इट कैन आल्सो बी पैरेललाइज्ड, राइट। अगर पाइपलाइनिंग की पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई कट सेट अवेलेबल है, इट मींस देन वी कैन आल्सो प्रोसेस द सैंपल्स इन पैरेलल। अब टास्क ये है कि हाउ टू डिजाइन अ पैरेलल FIR सिस्टम। तो इसको मैं ज़रा एम्प्टी स्लाइड के ऊपर आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ओके, तो हमारे पास पैरेलल सिस्टम जो है उसमें एक चीज़ है आती है जो कि है
पैरेललिज्म, इसको पैरेललिज्म को m से या n से जिससे भी डिनोट करते हैं, और इसको ब्लॉक लेंथ भी बोलते हैं, ब्लॉक या ब्लॉक साइज. Block size is the most important, more appropriate word. So if you have an FIR system with equation is yn is equal to ax of n plus bx of n minus 1 plus cx of n minus 2, and you are given a task to parallelize this system by a factor of 3. So we say that m is equal to 3. इसका मतलब है कि ये जो ओरिजिनल सिस्टम था, जो कि एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम था, जिसको PISO भी बोलते हैं, इसमें क्या था, वन सैंपल इज प्रोसेस्ड एट अ टाइम एंड वन आउटपुट सैंपल y of n is computed. Now you are going to parallelize this system by a factor of 3. It means it is now converted into a MIMO system, multiple input multiple output system, which is able to accept 3 input sample x of 3k, x of 3k plus 1, ये इंडेक्सिंग आपने केयरफुली देखनी है, एंड x of 3k plus 2. Similarly, it is able to produce 3 output sample y of 3k, y of 3k plus 1, and y of 3k प्लस 2. इसी तरह अगर आपके पास पाइपलाइनिंग फैक्टर m इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 5 सैंपल्स आएंगे, 5 इनपुट सैंपल्स होंगे और 5 आउटपुट सैंपल्स होंगे. और 5 इनपुट सैंपल कौन कौन से होंगे, x of 5k, x of 5k plus 1 up to x of 5k plus 4. और इसी तरह y of 5k आउटपुट होंगी, y of 5k से लेके y of 5k plus 4. तो ये हमने x of 3k, 3k plus 1, 3k plus 2 क्यों लिखा, हमारे पास अगर k इज इक्वल टू 0 हो, k जो है वो सैंपल इंडेक्स है, तो k इज इक्वल टू k इज द टाइम इंडेक्स, तो k इज इक्वल टू 0 हो, तो टाइम 0 के ऊपर हमारे पास कौन सा सैंपल यहाँ पे जाएगा, x of 3k की बजाय हमारे पास क्या हो जाएगा, x of 0, x of 3k, x of 3k would become x of 0, x of 3k plus 1 would become x of 1, and x of 3k plus 2 would become x of 2. So time t is equal to 0 के ऊपर 3 सैंपल्स अप्लाई होंगे, x0, x1, x2. टाइम k is equal to 1 के ऊपर कौन से सैंपल अप्लाई होंगे, x of 3, x of 3k plus 1 which is 4, x of 4, and x of 3k plus 2 which is x of 5. तो पहले क्लॉक साइकिल में x0, x1, x2 अप्लाई होंगे, दूसरे क्लॉक साइकिल में x3, x4, x5, तीसरे में x6, x7, x8 एंड सो ऑन. और इसी सीक्वेंस में आउटपुट भी प्रोड्यूस होगी. फर्स्ट क्लॉक साइकिल में आपके पास y0, y1, y2 प्रोड्यूस होंगे. सेकंड क्लॉक साइकिल में y3, y4, y5 एंड सो ऑन. राइट, नाउ हम इसको मॉडिफाई, इस सिस्टम को डिजाइन कैसे करेंगे, यूजिंग दिस इक्वेशन
and parallelism factor of 3. So let's see how we can do it. So we are given an equation y of n is equal to ax of n plus bx of plus bx of n minus 1 plus cx of n minus 2. So we have m is equal to 3. So we would be having 3 output samples, y of 3k, y of 3k plus 1 and y of 3k प्लस, अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है जहां जहां पे n है, क्योंकि ओरिजिनल जो नॉन पैरेललाइज सिस्टम में जो टाइम इंडेक्स था वो n था। अब जो पैरेललाइज सिस्टम है उसमें टाइम इंडेक्स आपके पास k है। अब चूंकि पैरेललिज्म फैक्टर 3 है तो y of 3k में हमने क्या किया, वी हैव रिप्लेस्ड n बाय 3k। सो दिस इक्वेशन बिकम ax ऑफ, अब n की जगह 3 पुट करेंगे तो यू विल हैव ax ऑफ 3k प्लस bx ऑफ, n की जगह 3k पुट करेंगे तो 3k माइनस 1 प्लस cx ऑफ 3k माइनस 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में आप n को रिप्लेस करेंगे 3k प्लस 1 से, तो you will have x of ax of 3k plus 1 plus bx of, n को 3k plus 1 से रिप्लेस करेंगे तो you will have 3k plus 1 और माइनस 1 उसी तरह आ जाएगा, प्लस cx of 3k प्लस 1 माइनस 2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल हैव दिस 1 माइनस 1 कैंसिल हो, तो यू विल हैव ax ऑफ 3k प्लस 1 प्लस bx ऑफ 3k प्लस cx ऑफ 3k minus 1 plus 1 minus 2 becomes minus 1. Similarly, this equation will be simplified to ax of 3k plus 2 plus bx of 3k plus 2 और माइनस 1 इक्वेशन से आ जाएगा यहाँ से, प्लस cx of 3k plus 2 minus 2, which simplifies to form ax of 3k plus 2 plus bx of 3k minus 1 plus 2 minus 1 is equal to minus 1 plus cx of 3k प्लस 2 माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास अब 3 इक्वेशन है जो आपने इंप्लीमेंट करनी है हार्डवेयर में। यू हैव x y of 3k is equal to this one, y of 3k plus 1 is equal to this one, and y of 3k plus 2 is equal to this one. These are the simplified equations. Okay, another very important concept. अगर आपके पास ब्लॉक साइज m है और आपके पास एक एज है जो कि है x ऑफ, लेट्स सपोज m इज इक्वल टू 3,
और यहाँ से आपके पास m ऑफ 3k x ऑफ 3k आ रहा है, और इसके अंदर अगर आप एक डिले एलिमेंट प्लेस करेंगे तो जो आउटपुट पे इफेक्टिव डिले प्रोड्यूस होगा वो m क्लॉक साइकिल का होगा। तो आउटपुट पे x ऑफ 3k माइनस 3 आपको मिलेगा। ठीक है, ये इस स्लाइड में भी एक कंसेप्ट गिवन है, लेट मी शो यू। यहाँ पे ये हमने सारा देख लिया। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक प्रोसेसिंग एंड द नंबर ऑफ इनपुट processed in a clock cycle is referred to as block size. So if this is the seesaw system, sequential system, if we parallelize it by a factor of 3, then we would be having x3k, x3k plus 1 and x3k plus 2 as the input sample, and it would be producing y3k, y3k plus 1, y3k plus 2 as output sample. Okay, now important note, in the MIMO structure, placing a latch at any line produces an effective delay of L clock cycle at the sample rate, where L is what? L is the level of parallelism. अगर ये 3 parallel है तो यहाँ पे L is equal to 3 होगा, block size जो है होगा. So each delay element is referred to as block delay. For example, when पैरेललिज्म फैक्टर m या l, आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं. स्लाइड्स में l लिखा हुआ है, जबकि मैं भी राइट जो कर रहा हूँ उसमें m है. So when block size is equal to 2, placing a one delay element across any path produces an effective delay of 2 samples. So if you have x2k, placing one delay element would result in x2k minus 2. Similarly, if the block size is 10, then one delay element is equal to 10 sampling delay. For example, you have x of 10k, and if you place a single delay element in the edge, the resultant output would be x 10k minus 10. So ये आपने बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना है. आपने पैरेललिज्म फैक्टर को देख के जहाँ पे भी आप डिले प्लेस करेंगे, जो रिजल्टेंट डिले होगा वो उसी फैक्टर से उतना ही सैंपल डिले प्रोड्यूस करेगा. नाउ गोइंग बैक टू व्हाट वी वर डूइंग ऑन स्लाइड्स, हम वो डिजाइन कर रहे थे. सो नाउ वी हैव m is equal to 3. So if we have x of 3k, we place one delay element, we get x of 3k minus 3. Similarly, if we have x of 3k plus 2 and we place one delay element over here, the resultant output would be x of 3k plus 2 minus 3, which will give us x of 3k minus 1. Similarly, if we have x of 3k plus 2 and we place two delay elements over here, then this will produce an effective delay of 6 clock cycles, 6 samples. So output would be x of 3k plus 2 minus 6, which would be x of 3k minus 4, right? So let's complete our FIR filter. We have 3 equations over here. Let me write them again. We have y of 3k equal to a x of 3k plus b x of 3k minus 1 plus c x of 3k minus
this is y of 3k, y of 3k plus 1 equal to a x of 3k plus 1 plus b x of 3k minus 1. Sorry, let me write this. It's not minus 1, but it's actually 3k, because 3k plus 1 minus 1 cancels out. So, and c x of 3k plus 1 minus 2 becomes minus 1. Similarly, y of 3k plus 2 is equal to a x of 3k plus 2 plus b x of 3k minus 1, because plus 2 minus 1 gives us sorry, okay. This is 3k plus 1 plus c x of 3 plus 2 minus 1 becomes 3k. Here we have plus 3k plus 2 minus 1, which gives us 3k plus 1. So we have these three equations which we have to implement on हार्डवेयर. जब हमने देखा कि हमारे पास जो इस मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम में इनपुट्स आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं. वी हैव x of 3k, x of 3k plus 1 and x of 3k plus 2. जबकि यहाँ पे इक्वेशन में हमें x of 3k minus 1 भी चाहिए, minus 2 भी चाहिए, यहाँ पे minus 1 चाहिए, right? So let's see how we can implement this. So we have 3 inputs coming from outside x of 3k, x of 3k plus 1 and x of 3k plus 2. अब हमें y of 3k इम्प्लीमेंट करना है. तो वी हैव y of 3k इज इक्वल टू a x of 3k. सो अगर यहाँ पे मैं इसको इधर से कनेक्ट कर दूँ एक मल्टीप्लायर के साथ, you will have a over here. So this is a x of 3k plus b x of 3k minus 1. तो अगर यहाँ पे आपके पास x of 3k plus 2 हो और उसको एक डिले एलिमेंट से गुजारा जाए, because block size is 3, so it will produce an effective delay of 3 clock cycles. So the resultant output would be x of 3k minus 3 plus 2. This would be equal to x of 3k minus 1. So we have a delay element over here, and at the output of this delay element we have x of 3k minus 1. Similarly, if we place a delay element over here, we have at the output x of 3k minus 2. So since addition is an associative and also a commutative operator, so we can, let me make it a little better.
we have here we have 8x of 3k. If we multiply it by, this is x of 3k minus 2, so if we multiply it by c and add them together, and if we multiply by b, add it to the previous one, so this is y of 3. Y of 3k is equal to ax of 3k plus bx of 3k minus 1 plus cx of 3k minus 2. Similarly, y of 3k plus 1 would be ax of 3k plus 1. So here, from here we can have another line going over here. We have a multiplier ax of 3k plus 1 plus bx of 3k. So from here we can take another line and we can multiply b, adding them together we will have plus cx of 3k minus 1. So from here we can take another output and multiply it by, so this would produce the output y of 3k plus 1. Similarly, you can compute y of 3k plus 2 by taking x of 3k plus 2, you can multiply it by a over here, b x of 3k plus 1, you can take b from here and multiply by it by b, adding them together, and the third output is cx of 3k. So from here we have cx of 3. So this would be y of 3k plus 2. So this is how you make a parallel FIR filter with a block size of 3. So let us go back to the slide, to the original slides. So this is what we have just made on the slide. We have 3 input, x of 3k plus 1 and x of 3k plus 2, and by placing appropriate delay element you have y of 3k plus 1, y of 3k plus 2. So let's see what is the critical path of this parallel system. So here we have a delay element, and we also assume that all inputs and outputs are registered. So the critical path delay is this h, tm plus 2ta. So if we see from here, you have tm plus 2ta. Similarly, if we see from here, we have 1 multiplier and 2 adders. So again tm plus 2ta. For the third output, we also have the same situation, tm plus 2ta. So it means you had an original FIR filter whose critical path was tm plus 2ta, and after applying parallel processing, the critical path is almost the same. It means that the parallel system is able to operate on the same frequency because it has got the critical path similar to the original system. But what we do is that by processing multiple samples per clock cycle using the same frequency, we are able to increase the sample rate by a factor of block size.
So this is repeated over here. The critical path of the block processing system remains unchanged, but since 3 samples are processed in 1 clock cycle, the iteration period is given by the following equation. Clock period is same, but the sample rate is now, iteration period is equal to sample time, which is equal to T clock divided by L. So iteration period is, since now three iterations are being processed in 1 clock cycle, so time to complete 1 iteration is reduced by a factor of 3. So it is important to understand that in a parallel system, T sample is not equal to T clock. Sample time is not equal to clock period, but sample time is equal to clock period divided by the parallelism factor. Similarly, in a pipeline system, the sample time is equal to clock, because we are processing 1 sample per clock cycle. So the sample rate of pipeline system is basically dictated by the critical path, whereas the sample rate in parallel system depends upon the level of parallelism, block size. Now question arises how to convert the incoming serial stream of sample into parallel form. तो अगर आपके पास 4 पैरेलल सिस्टम है तो आप एक सिंपल सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर को यूज करके उस इनकमिंग स्ट्रीम को 4 पैरेलल स्ट्रीम में स्प्लिट अप कर सकते हैं. तो इनपुट साइड पे आपके पास सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर होगा और आउटपुट साइड पे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर होगा, विच इज ऑल अगेन अ शिफ्ट रजिस्टर. अब इससे नेक्स्ट जो लेवल है कि अगर आपके पास किसी सिस्टम को पैरेललाइज करने से भी आपकी थ्रूपुट रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो सकती, तो फिर हमारे पास इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि हम उस सिस्टम को पैरेललाइज भी करें और पाइपलाइन भी करें. तो हम दोनों के जो कंबाइंड एडवांटेजेस हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. तो पाइपलाइनिंग कैन बी कंबाइंड विद पैरेलल प्रोसेसिंग टू फर्दर इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ डीएसपी सिस्टम. सो अगर आपके पास पैरेलल प्रोसेसिंग में ब्लॉक साइज L है और पाइपलाइनिंग डेप्थ जो है आपने उसके साइज M है, तो by combining parallel processing with pipelining, the effective sample period can be reduced to T clock by L into M. तो अगर आपका सिस्टम है आपने उसको 2 लेवल पैरेललाइज किया हुआ है और पाइपलाइनिंग डेप्थ 3 है, तो इफेक्टिव जो सैंपल टाइम है वो बाय अ फैक्टर ऑफ 6 रिड्यूस होगा, यानी सैंपल रेट जो है बाय अ फैक्टर ऑफ 6 इंक्रीज हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा. 2 गुना वो पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से बढ़ेगा और 3 गुना जो है वो पाइपलाइनिंग की वजह से बढ़ेगा. तो हम इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइनिंग को हम पावर रिडक्शन के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं. So we'll see you in the next video.